जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। Friends, I will read this statement in English. Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its India alliance partners have used caste census only as a political tool. As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that a social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that a government is committed to the values and interests of a society and country. Like in the past, when a government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. जाति जनगणना पर सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सीसीपीए की तरफ से फैसला लिया गया। सरकार ने क्लियर किया कि अगली जनगणना जो भी होगी उसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाना भी साधा। कहा कुछ राज्यों में जाति आधारित सर्वे कराए गए थे जिन्हें जनगणना नाम दिया गया, लेकिन सेंसस जो है वो यूनियन का विषय है। संविधान के मुताबिक यूनियन लिस्ट में है और राज्यों के जो भी सर्वे हैं या तो वो कुछ राज्यों में सही ढंग से किए गए, लेकिन कुछ राज्यों में खास करके विपक्षी राज्यों का बिना नाम लिए निशाना साधा उन्होंने की अपारदर्शिता वहां रही और उसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया कांग्रेस शासित राज्यों में, इंडी गठबंधन शासित राज्यों में। लेकिन अब सरकार इस पर पूरी पारदर्शिता के साथ संविधान सम्मत मूल जनगणना के साथ ही जाति जनगणना कराएगी। ये सीसीपीए की बैठक में फैसला लिया गया है। इसको लेकर अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। कैबिनेट को लेकर ब्रीफ किया उन्होंने। सीसीपीए की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया, ये जानकारी भी साझा की। तो मूल जनगणना की मांग भी लगातार उठ रही थी और इसके साथ ही जातीय जनगणना ये एक बड़ा मुद्दा न सिर्फ चुनावों के दौरान भी देखने को मिला है। इससे पहले लोकसभा चुनावों के दौरान जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया गया। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और अपनी इसी कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ ऐसी
स्टेट गवर्नमेंट्स रही जिन्होंने सर्वेस करवाए और उन्होंने रिपीट किया कि वो सिर्फ सर्वेस थे जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन जातीय जनगणना अब सरकार कराएगी। अश्विनी वैष्णव की तरफ से केंद्रीय कैबिनेट मीटिंग की प्रेस ब्रीफिंग में इस बात की जानकारी दी गई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, जातीय जनगणना को लेकर मूल जनगणना होगी और उसी मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी केंद्र सरकार कराने वाली है, जिसे मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से दे दी गई है। इसके साथ ही और भी महत्वपूर्ण फैसले जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए उसका भी जिक्र किया गया। अश्विनी वैष्णव की तरफ से सीसीपीए की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मूल जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी होगी और मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। मोदी सरकार ये कराएगी। अब जब भी आगे मूल जनगणना होगी उसके साथ जातीय जनगणना यानी कि कास्ट बेस्ड सेंसस ये भी कराया जाएगा। इस बात की जानकारी अश्विनी वैष्णव की तरफ से दी गई कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को भी मंजूरी दे दी है। तो सीसीपीए की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, उसकी जानकारी भी दी गई है अश्विनी वैष्णव की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ जातीय जनगणना को लेकर भी ब्रीफ किया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीसीपीए की बैठक, जो पॉलिटिकल अफेयर्स कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसको लेकर जानकारी। उसके बाद की जब मूल जनगणना आगे होगी तो उसके साथ जातीय जनगणना भी मोदी सरकार कराएगी। और जैसा कि मैंने जिक्र किया, जातीय जनगणना हो इस बात की मांग विपक्ष की तरफ से होती रही। सरकार से इसे लेकर सवाल भी पूछे जाते रहे हैं, जो जाहिर है एक तरफ चुनावी मुद्दा भी रहा है और दूसरी तरफ सरकार ने अब इसे लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। आइए सीधे न्यूज रूम चलते हैं। अदिति नागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, सरकार के इस फैसले को कितना बड़ा फैसला माना जाए, क्योंकि जातीय जनगणना को लेकर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरा का पूरा विपक्ष बार बार चुनावों के दौरान इसका जिक्र करता रहा है और अब केंद्र सरकार की तरफ से इसे भी मंजूरी दे दी गई है। इस सुपर कैबिनेट की बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला होगा, लेकिन ये राजनीतिक लिहाज से बहुत बड़ा फैसला हो गया और राहुल गांधी के पास इकलौता एक मुद्दा था, उसको भी ले लिया गया। अब लेकिन इसको समझा जा सकता है। देखिए, नीतीश कुमार ने, आपको याद होगा, बिहार में पहले ही जातीय जनगणना की वकालत की थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के चुनाव भी हैं और बिहार में अगर देश में जाति के नाम पर वोट अगर सबसे ज्यादा कहीं पड़ता है तो वो बिहार है। शिखा हमारे साथ मौजूद है, वो बेहतर तरीके से जानती होंगी, मुस्कुरा भी रही हैं। तो इस समय जो टाइमिंग है जातीय जनगणना का अनाउंस करने का, देखिए अभी तक कांग्रेस राज्य वाली सरकारों ने, जैसे राजस्थान में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, उन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। उसके बाद बहुत सारे और लोगों ने इसको प्रमोट किया था, विपक्ष के लोगों ने। नीतीश कुमार पहले थे जिन्होंने जातीय जनगणना की बात की थी। ये तो एक मुद्दा है ये बताने का, जब आप जातीय जनगणना करते हैं उससे होता क्या है। उससे आप अनुपात के लिहाज पे फिर सरकारी नौकरियां होती हैं, अनुपात के लिहाज से उनको सब तरह की सर्विसेज मिलती हैं। तो जो जातियों में जातियों वाला जो फैक्टर है, या किसी एक पर्टिकुलर जाति में सिर्फ कुछ 5 श्रेणियों को ही रिजर्वेशन मिलते हैं, वो उससे में भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी सब जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन का फ़ायदा ही नहीं मिलता, जबकि उनको एक्चुअल ज़रूरत है रिजर्वेशन की। ये तो हुआ है कि इसका प्रैक्टिकल समझना, लेकिन अब एक दूसरे लिहाज से समझा जाए। वैसे भी जातीय जनगणना और ये जैसे बोलते हैं, ये काउंटिंग जो है ये होनी ज़रूरी है, क्योंकि डीलिमिटेशन होगा। देश में हम बड़ी और नई संसद भवन में इसलिए आए हैं क्योंकि हमको ऐसी स्ट्रेंथ की संसद भवन चाहिए थी जिसमें 800 साढ़े 800 सांसद हो सकें। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए 3 बातें हैं। पहला, डीलिमिटेशन होगा। दूसरी बड़ी, उसके बाद वो जो लोकसभाएं हैं और विधानसभा, जैसे राजस्थान में 200 सीटें हैं अभी, तो आप देखेंगे आने वाले समय में 350 सवा 300 सीटें होंगी। सबको डीलिमिट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात है, इसलिए भी जातीय जनगणना होना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात है, जो महिला आरक्षण की बात हम करते हैं, महिला आरक्षण में जो 33% जो सीटें बढ़ानी है, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, उसमें भी ये क्लॉज है कि पहले डीलिमिटेशन होगा, फिर 33% ये सीटें बढ़ाई जाएंगी। अब 33% सीटें कैसे बढ़ाई जाएंगी? जाहिर तौर पे ये अभी जो हमारे 543 लोकसभा सीटें हैं, वो जब तक 850 नहीं होंगी तो डीलिमिटेशन और जातीय जनगणना तो होना ही है, लेकिन इसका टाइमिंग अच्छा चूज किया गया। सवाल, कब तक एक्सपेक्टेड मूल जनगणना और उसके साथ साथ जातीय जनगणना, इसको लेकर कोई डेडलाइन भी है क्या? देखिए, एक देश एक चुनाव और ये जातीय जनगणना, ये तमाम एक बहुत रिसर्च और बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। आज बोला है तो लगभग आपने जल्दी जवाब मांगा, इसमें प्रॉपर 2 साल का समय लगेगा, उसके बाद कहीं जाके होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो जातीय जनगणना कराएगी मोदी सरकार, इस बात का ऐलान अश्विनी वैष्णव की तरफ से बैठक के बाद ब्रीफिंग में किया गया है।